Good morning, students. I hope you all are fine. And let us start with the class today. So, we had finished the first 3 pages of the chapter, and now, and we had started with the fourth page as well. So, we have to start from here onwards. So, I'm just going to give you a recap. मैं आपको recap एक दे देती हूँ कि अभी तक स्टोरी में क्या हुआ था students. That Wali has finally reached the town. एंड नाउ दे वर गोइंग बैक टू द विलेज. अब वो रिटर्न ट्रिप जो है वो स्टार्ट होने वाली है स्टूडेंट्स. ओके, सो first of all let us mark the important word meanings and then I will start with the explanation part. Okay, so kindly mark these words were done. You have to mark from here. So the second last paragraph of this page, students, mark the word wonderful sights. Okay, then mark the word greeted. Okay, that's it. ये वाले पेज में स्टूडेंट्स आपको इतना ही मार्क करना है. देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, you have to mark the first word is nodded. Okay, then the 3 words that is highlighted, overcome with sadness. Okay, then the next word you have to mark is, you don't have to mark lovable students. Okay, so leave that. Then mark spread eagled. Okay, then mark the word in the next paragraph, haunted. Then the next word is dampening her enthusiasm. Okay, dampening her enthusiasm. Though the meaning is given in the down, but still you have to underline these words. Okay, then coming on to the next paragraph, mark glued to her seat. Then leaving the 2 paragraphs, come to this paragraph and mark the word casually. Then in the second last paragraph, mark the word midst. Okay, midst. Okay, so that is it, and this you will have to write it later on. Okay, so you can see the video and then you can write. Okay, so I hope you marked the words. So let us start with the explanation. Okay, so as you know that the bus conductor had offered Wali a cold drink, but she refused because she had no money. Bus conductor ने वाली को एक कोल्ड ड्रिंक ऑफर की थी स्टूडेंट्स, जो कि उसने मना कर दी थी. वाई? बिकॉज शी हैड नो मनी फॉर इट. ओके, नाउ फाइनली द रिटर्न जर्नी हैज स्टार्टेड. When the bus started again, there were the same wonderful sights. Now again, when the bus is going through the same route, अब return जो route है वो भी same है. So again, those wonderful sights that वाली encountered, या वाली ने जो देखी थी sights, वो उसने फिर से wonderful sights एक और बार देखी. Wali greeted everything with the same excitement. Now what does greeted means? Greeted मतलब wished या looked. So वो जो चीज़ें थी, या वो लैंडस्केप्स थे, या जो वो साइट्स थी, जो सीन्स थे, जो वाली ने फर्स्ट टाइम भी देखे थे, एंड नाउ वो अगेन वो चीज़ देख रही थी. तो जो वो चीज़ें देख रही थी वो वही सेम एक्साइटमेंट से देख रही थी, वही जिसको एक्साइटमेंट को आप हिंदी में उत्साह कहते हैं स्टूडेंट्स, उसी वे से देख रही थी जब उसने वो सब चीज़ें फर्स्ट बार देखी थी. तो उसमें जो एक्साइटमेंट या जो हैप्पीनेस थी वो सेम अमाउंट की थी. ओके, शी फेल्ट द फर्स्ट टाइम. ओके, तो फर्स्ट टाइम पे जो उसने एक्सपीरियंस किया था वैसे ही वो सेकेंड टाइम भी वही चीज़ सेम इंटेंसिटी से, सेम फीलिंग से एक्सपीरियंस कर रही थी. सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग बाय द रोड साइड. अब उसने सडनली एकदम से एक ऐसी साइड देखी जो कि क्या थी, देयर वाज अ यंग काउ जो कि लाई कर रही थी, मतलब ज़मीन पे पड़ी हुई थी, रोड साइड के साइड ऑफ द रोड. ओके, just where it had been struck by some fast moving vehicle. So ये वही काव है स्टूडेंट्स जो प्रीवियसली बस के आगे रन कर रही थी. ये वही काव है, वही यंग काव है. एंड वो काव जो थी वो साइड अपने आप नहीं हटी थी, कोई मूविंग व्हीकल ने या किसी कार ने या किसी और बस ने उसको गलती से गिरा दिया था. ओके स्टूडेंट्स, तो वही सेम काव वहीं पे लेटी हुई थी, मतलब किसी ने उसकी अभी तक हेल्प नहीं की थी. Isn't that the same young cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. अब वाली ने कंडक्टर से पूछा that ये सेम काउ ही है जो हमारे बस के आगे रन कर रही थी. The conductor nodded. Nodded का मतलब स्टूडेंट्स प्लीज राइट इट डाउन.
नॉडेड का मतलब होता है आंसर येस विद अ हेड शेक, मतलब आप इंस्टेड ऑफ बोलने येस बोलने की बजाय आप बेसिकली अपना हेड शेक करके क्या आंसर कह रहे होते हो, येस. ओके, तो वही कहने का मतलब है. एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, और जब उसने पूछा और बस कंडक्टर ने येस बोला अपने आंसर में, तो शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस. नाउ मीनिंग यू कैन सी हियर डाउन. ओवरकम विद सैडनेस का मीनिंग स्टूडेंट्स है बिकम एक्सट्रीमली सैड. वो बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी ऐसी साइट को देख के. ऑब्वियसली बिकॉज वो काव थी, वो एक एनिमल था, एंड वो वाली स्मॉल थी, एंड क्रूअल्टी अगेंस्ट एनी एनिमल इज़ नॉट टॉलरेटेबल. हम किसी भी जानवर के प्रति इतने क्रूअल या वो नहीं हो सकते. ओके स्टूडेंट्स, what had been a lovely beautiful creature just a little while ago. तो वो creature मतलब क्या है स्टूडेंट्स, थिंग. ठीक है, लिविंग थिंग को creature भी बोलते हैं हम. तो वो एक क्या थी, वो एक लवेबल, और लवेबल मतलब जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ज़्यादा ब्यूटीफुल थी वो. एंड वो अब क्या रह गई थी, had now suddenly lots its charm. तो अब वो अपना charm, अपनी beauty सब खो चुकी है. and looked so frightening as it lay there. और वो अब कैसी लग रही है, वो एक frightening, डरी हुई, सेमी हुई creature या एक पर्सन की तरह बिहेव कर रही है. और वो क्या है, lay there मतलब she is lying down the roadside. Spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes. Spread eagle का students meaning होता है stretched out with the arms and legs extended. मतलब पूरा आप स्ट्रेच होके जब ज़मीन पे लेट जाते हो, उसको क्या टर्म करते हैं, स्प्रेड ईगल्स. मतलब आपके लेग्स एंड आर्म्स जो होते हैं वो एक कंडीशन में स्प्रेड होते हैं, जैसे आपने एनिमल्स को लेटे हुए देखा होगा. ओके, कि उनके 4 लेग्ड होते हैं, तो वो जो है अपने बैक के ऊपर रेस्ट करके लेटते हैं. अ फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज. और उसकी फिक्स स्टेयर मतलब वो एक तरफ, बेसिकली फिक्स स्टेयर का मतलब स्टूडेंट्स होता है घूरना. वो सिर्फ एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में देख रही थी, उसकी आइज जो थी वो मूव नहीं कर रही थी. एंड इन इट्स लाइफलेस आइज, लाइफलेस मतलब ऐसे सीम्स टू डाई, मतलब ऐसे लग रहा था कि उसमें जान नहीं बची है. तो प्लीज़ राइट डाउन दिस मीनिंग. सीम्स टू डाई मतलब वो ऐसे लग रहा था कि वो बेसिकली अब बस मरने वाली है. द बस मूव्ड ऑन. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर. तो बस तो मूव करके निकल गई उस एरिया से, बट जो मेमोरी थी डेड काउ की, उसकी माइंड में बार बार प्ले हो रही थी. And she was getting haunted. Haunted मतलब she was getting scared. Dampening her enthusiasm. अब dampening a enthusiasm का मतलब क्या होता है, reduced her eagerness greatly. मतलब जितनी भी वो eager या excited थी ट्रिप को लेके, वो सारी अब reduce हो चुकी थी. So no longer wanted to look out the window. अब वो no longer, वो पूरे टाइम पूरी ट्रिप में विंडो के बाहर स्टेयर कर रही थी, चीज़ें इंजॉय कर रही थी, सीन्स इंजॉय कर रही थी, बट नाउ उसको विंडो का बाहर देखने का मन नहीं हो रहा था. She sat thus glued to her seat. तो वो अब जाके फाइनली अपनी सीट पे जाके बैठ गई. Until the bus reached her village at 3:40. तो वो फाइनली जाकर अपने ग्लूड टू हर स्टिक मतलब स्टिक टू हर सीट. ओके, ग्लूड का मतलब आपको पता है स्टिक होता है स्टूडेंट. स्टिक मतलब चिपक के बैठ गई वो अपनी सीट में, वो हिली नहीं बेसिकली अपनी सीट से. शी स्टूड अप एंड टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड. अब फाइनली वो तब तक बैठी रही वैसे स्टूडेंट्स जब तक वो अपने फाइनली विलेज नहीं पहुंची. और विलेज कितने बजे पहुंची, वो अपने 3:40 पे. एंड फाइनली जब शी स्टूड अप मतलब खड़ी हुई बस से निकलने के लिए, तो उसने कंडक्टर की तरफ देखा एंड सेड, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन. तो उसने कहा कि वेल सर, थैंक यू सर, नाउ आई होप टू सी यू अगेन. मैं आपसे मैं सोचती हूँ कि मैं आपसे फिर से मिलूंगी. आई होप मतलब मैं आपसे फिर ज़रूर मिलूंगी. मतलब उसका कहने का बेसिकली मतलब है स्टूडेंट्स दैट व्हेन शी विल ट्रैवल विद द सेम बस शी होप टू सी हर अगेन. ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग. एंड उसने ओके मैडम रिप्लाई में दिया. कम एंड जॉइन अस व्हेनेवर यू फील लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर. और उसने स्माइल करते हुए बोला कि यू कैन जॉइन, जब भी आपका मन करे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, बट डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग द फेयर. फेयर एज इन मनी, जो ट्रिप का अमाउंट होता है वो आपको लाना पड़ेगा. ओके, शी लाव्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस. एंड वो हंसते हुए जंप करते हुए बस से उतर गई. ओके, व्हेन शी
entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wali's aunts. तो when she returned home, तो उसने क्या नोटिस किया कि जो उसकी मदर है, जो उसकी मदर होंगी, वो उसकी आंटी से बात कर रही हैं, कोई नेबर होंगी आंटी या हुसैवा आंटी होंगी, एंड शी इज़ अवेक. वो अपने जो नैप लेती हैं दिन में, वो उससे उठ चुकी हैं, एंड नाउ शी इज़ डूइंग समथिंग एंड टॉकिंग टू हर आंटी. And where have you been? Her aunt asked when Wali came in. तो उसकी आंटी ने उससे क्वेश्चन पूछा, where have you been मतलब तुम कहाँ थी अभी तक. Okay, where were you? She spoke very casually, not expecting a reply. तो उसने ऐसे ही, obviously जब आपकी मदर या किसी और से आंटी से बात कर रही होती तो वो कॉन्वर्सेशन में इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं उसको हिंदी में, इतनी ज़्यादा घुसी होती हैं कॉन्वर्सेशन में, या इतनी ज़्यादा वो रहती हैं कि आपके क्वेश्चंस का आंसर करना या आपके बारे में वो तब ध्यान नहीं देंगी, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन में या गॉसिप में इतना लगी रहती हैं कि वो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगी. तो उसी कॉन्वर्सेशन में, जब उन लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो उसी में उनकी आंटी ने वाली को देखा होगा, एंड शी कैजुअली का स्टूडेंट्स मतलब होता है विदाउट सीरियसली. ठीक है, विदाउट बीइंग सीरियस या विदाउट सीरियसली. ठीक है, तो कैजुअली उन्होंने वाली से पूछा कि तुम कहाँ थी बेटा. नॉर्मली जैसे ग्रीट करते हैं घर में, इमेजिन करो रिलेटिव आया है उन्होंने. ठीक है, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई. तो वो उसका रिप्लाई एक्सपेक्ट इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा, रिप्लाई का वेट नहीं किया, वो अपनी बातों में लग गई थी, इसलिए वो रिप्लाई का एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी या वेट भी नहीं कर रही थी. सो वाली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद द कॉन्वर्सेशन. तो वाली ने क्या किया, वाली को भी पता था, बिकॉज वो लोग इतना ज़्यादा इनग्रोस थे बातों में, तो वाली को भी पता था कैजुअली पूछ रही है आंटी. तो वाली ने भी क्या किया, क्वेश्चन जो है वो स्किप कर दिया, उसका आंसर नहीं किया. शी स्माइल्ड एंड उसने देखा कि जो उसकी मदर और आंट है वो दोनों कॉन्वर्सेशन में फिर से वापस चली गई हैं विदाउट केयरिंग अबाउट हर. येस यू आर राइट, हर मदर सेड. तो अब कोई कॉन्वर्सेशन चल रही थी, उसी के बारे में यहाँ डिस्क्राइब्ड है स्टूडेंट्स. तो उसकी मदर जो है वो आंट से कह रही थी, येस तुम सही हो. मतलब आप जैसे ऑब्वियसली आप घर पे हो, आप बाहर से आते हो, तो आप देखते हो कि आप कोई कॉन्वर्सेशन ऑलरेडी चल रही होती है, तो जो कॉन्वर्सेशन आप सुन पाते हो, वैसे ही यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन वो सुन पा रही है वही चीज़ें मैंशनड हैं. ओके, सो मैनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड. तो मिड्स का मतलब स्टूडेंट होता है सराउंडेड बाय अदर थिंग्स. तो बेसिकली उसकी मदर कह रही हैं कि इतनी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, मिड्स मतलब हम लोग सराउंडेड हैं इतनी सारी चीज़ों के साथ, इन द वर्ल्ड आउटसाइड मतलब बाहर की जितनी भी दुनिया है उसमें कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं. हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग. और हम हर चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें. ऑब्वियसली वर्ल्ड में हर कोने में क्या चल रहा है हम नहीं जान सकते, राइट स्टूडेंट्स. एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, एंड जब हमें, एंड उसकी मदर कहती हैं, और अगर हमें कुछ चीज़ के बारे में पता भी रहता है, कुछ चीज़ों के बारे में, न्यूज़ के बारे में हमें पता भी रहता है, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन बी. और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता भी चल जाती हैं, तब भी हम उनको समझ नहीं पाते हैं कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं कि वो चीज़ें क्यों हो रही हैं और वो क्यों हुई हैं. अब ये स्टूडेंट्स यहाँ बेसिकली एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं कि जैसे वाली के साथ हुआ था. वाली ने उस काऊ को देखा कि वो काऊ पहले कितनी ब्यूटीफुल थी, पहले कितना फन कर रही थी, शी वॉज रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, एंड देन इन जस्ट 1 सेकेंड उसके साथ क्या हुआ, वो गिर गई, उसको किसी ट्रक ने हिट कर दिया या मार दिया, एंड देन वो बिल्कुल लेटी हुई थी, एंड देन जो ब्यूटीफुल थी और वो इतनी सुंदर थी, वो चीज़ एंड होके वो कितनी फ्राइटनिंग हो गई थी. तो वो ही बेसिकली कुछ चीज़ें लाइफ में होती हैं बट हम उनका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं कि क्यों वो काऊ के साथ ऐसी चीज़ें हुई थी. तो वाली बेसिकली वो ये सब चीज़ें सुन रही हैं, एंड देन वो दिमाग में सोच रही है जैसे वो बाहर गई थी एंड ये काऊ के साथ हुआ. ओके, Wali smiled to herself. She didn't want to understand her smile. Okay. Wali smiled to herself. अब ये सब सोच के वाली अपने मन में उसने स्माइल किया, उसने सोचा कि अपने ट्रिप के बारे में सोचा, दैट शी वेंट ऑन द ट्रिप जिसके बारे में उसके पेरेंट्स या उसकी मदर को पता भी नहीं चला. शी डिडंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल. और उसने ऐसे स्माइल किया कि मदर और आंट को पता भी ना चले कि वो स्माइल क्यों कर रही है. ओके, बट देन there wasn't much chance of that, was there?
बट वहाँ पे कोई चांस नहीं था या वो चांस नहीं ले सकती थी कि वो अपने स्माइल को एक्सप्लेन कर पाए कि वो क्यों स्माइल कर रही थी, ठीक है। वो अगर बता देती स्टूडेंट्स कि वो ऐसे गई थी ट्रिप पे, तो आगे से उसका आपको पता है, अगर आप बता देंगे आप कहीं घूमने गए थे अपने पेरेंट्स को छुप के, और तो आपको पता है कि अगर आपने बताया तो आगे से आपको घर से बाहर जाने को भी नहीं मिलेगा। बाहर तो घूमना तो अलग, आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। सो दैट इज़ वाई शी स्माइल्ड, और वो उसको पता था कि वो अपने पेरेंट्स को या अपनी आंट और मदर को नहीं बता सकती कि वो ऐसे बाहर गई थी, ओके। दैट इज़ वाई आई हैव रिटन द मीनिंग या she was happy, okay, just add was. She was happy and wanted to tell her mother about the ride but she couldn't, ठीक है। तो बेसिकली ये जो लाइन का मतलब है, लास्ट लाइन का, इसका मतलब यही है, शी वॉज हैप्पी एंड वॉन्टेड टू टेल हर मदर अबाउट द राइड, कि वो राइड पे गई थी, बट शी कुडंट। और वो क्यों नहीं बता सकती है ये आपको भी पता है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर वो बता देती तो आगे से उसको कहीं पे भी जाने को नहीं मिलता, उसको घर में ही फिर बंद करके रखा जाता, बिकॉज उसने इतना बड़ा स्टेप लिया था एंड शी वॉज सो स्मॉल, सिर्फ 8 ईयर्स की ही वो थी। और इमेजिन करिए स्टूडेंट्स, अगर वो ट्रिप पे जाती एंड क्या होता अगर वो कंडक्टर से कोल्ड ड्रिंक ले लेती स्टूडेंट्स, और कंडक्टर ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता, तो क्या होता। आई नो आई एम गिविंग यू क्राइम पेट्रोल एपिसोड, मैं आपको क्राइम पेट्रोल का एपिसोड बता रही हूँ, बट इट्स एक्चुअली नॉट सेफ टू गो लाइक दिस। सो दिस चैप्टर इज़ वेरी नाइस एंड एवरीथिंग, बहुत स्वीट सा चैप्टर है, बट यू शुड नॉट डू दिस इन योर रियल लाइफ, बिकॉज जिस टाइम पे हम लोग रह रहे हैं स्टूडेंट्स, द टाइम वी आर लिविंग इन द कंडीशंस एंड द इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हम आजकल रह रहे हैं, इट्स नॉट सेफ टू गो आउटसाइड लाइक दिस। सो इट्स अ चैप्टर विच वी इंजॉयड रीडिंग, जिसको हमने इंजॉय किया, बट इसको रियल में बिल्कुल भी करने वाला एक्सपीरियंस नहीं है स्टूडेंट्स, ओके। सो वील स्टडी अबाउट द ऑथर ऑल्सो, कुछ ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि किसने ये लिखी थी। आर एस कृष्णस्वामी, ओके। तो आर एस कृष्णस्वामी ने ये बेसिकली लिखा है, वॉज अ राइटर, जर्नलिस्ट एंड ट्रांसलेटर फ्रॉम तमिलनाडु। सो वो रहने वाले थे तमिलनाडु के, एंड वो क्या थे, राइटर थे, जर्नलिस्ट थे। जर्नलिस्ट कौन होते हैं, जो बेसिकली न्यूज़ रिपोर्टिंग करते हैं स्टूडेंट्स, ओके। एंड द ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर क्या होते हैं, जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अपनी स्टोरीज़ को या बुक्स को कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम ट्रांसलेशन में हिंदी टू इंग्लिश पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही ट्रांसलेटर होता है, ओके। ही अडॉप्टेड द pseudonym Valikanam while working for magazine like Navasakthi and हनुमान। तो उन्होंने क्या किया है बेसिकली, वाली नमन जो है वो स्टूडेंट्स, वो रियल नेम है इस चैप्टर का, इन तमिलनाडु, मतलब बेसिकली तमिल लैंग्वेज में जो चैप्टर या बुक का नाम है वो है वाली कन्नम। तो इसको बेसिकली इन्होंने क्या किया है, आर एस कृष्णस्वामी ने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, ओके। एंड उनकी कुछ मैगजीन्स हैं जिनका नाम था नावी शक्ति एंड हनुमान, ओके। ही वॉज अवॉर्डेड द सत्य अकादमी अवार्ड फॉर तमिल इन 1978 फॉर हिज वर्क ऑन तमिल पोइट्री। तो उनको सत्य अकादमी या अकादमी बोल सकते हैं, अवार्ड भी मिला था तमिल में इन 1978, उनकी तमिल पोइट्री जो वो लिखते थे उसके लिए उनको अवार्ड भी मिला है, ठीक है। तो ये आर एस कृष्णस्वामी ने ये जो चैप्टर है उसके बारे में लिखा है, जो उन्होंने ट्रांसलेट किया है वाणी कन्नम से, ओके। मैडम राइड्स द बस जिसका नाम है, ओके। सो आई होप यू हैड एंजॉयड द चैप्टर स्टूडेंट्स, एंड नाउ यू हैव टू स्टडी द चैप्टर, द होल चैप्टर। आज आप पूरे चैप्टर की स्टूडेंट्स रीडिंग करेंगे, क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आपने जो जो पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर लिए हैं चैप्टर में। आज आप खुद एक बार साइलेंट रीडिंग करेंगे, फिर अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए चैप्टर की एक बार रीडिंग करनी है आपको स्टूडेंट, सो दैट आपको पता चल जाए कि आपको चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन हो गया है। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस इन द कॉम्प्रीहेंशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो कि बुक के पीछे दिए हैं। पहले हम कॉम्प्रीहेंशन डिस्कस करेंगे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ओके। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डू टुमारो। देन स्टूडेंट्स जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम तभी कर पाएंगे स्टूडेंट्स जब हमने ग्रामर पढ़ी है, ओके।
सो जो फर्स्ट ग्रामर की एक्सरसाइज है ये बेसिकली टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में है. सो दिस व्हेन वील स्टडी द ग्रामर पोर्शन देन वील डू इट. ओके, ट्रांसफॉर्म दीज सेंटेंसेस इनटू सिंपल. ओके, वोकैबुलरी, पॉजिटिव कंटोशन क्या होता है, नेगेटिव कंटोशन क्या होता है, ये सब वील डू इट after when we've studied this. Okay, so please today, okay, we can do this exercise. ये बेसिकली क्या है, स्पेलिंग एरर्स हैं जो कि आपको बताने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं कि इन दोनों में से कौन सी स्पेलिंग सही है. ये स्पेलिंग सही है, ये स्पेलिंग सही है. तो ये स्पेलिंग्स ये हम कर सकते हैं अभी. एंड देन ये आपको अपनी बुक में ही फिल करनी है स्टूडेंट्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, सो 3 मिनट्स भी विल डू. अब अकोमोडेशन ऐसे लिखते हैं या अकोमोडेशन ऐसे लिखते हैं, तो अकोमोडेशन ऐसे लिखते हैं. ओके, देन देयर इज कमिटी. कमिटी, दिस इज राइट, डबल टी डबल एम होता है. फोर्सिएबल होता है, फोर्सिएबल की स्पेलिंग ये होती है. ओके, मीडिएट की स्पेलिंग ये होती है. रेफर्ड की स्पेलिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, हमने कितनी अपनी आरटीसीज में वी हैव स्टडीड कि रेफर्ड की स्पेलिंग क्या होती है, डबल आर लगता है या डबल ई एफ लगता है, सॉरी वो लगता है. तो रेफर्ड की स्पेलिंग क्या होती है. फिर टुमारो हो गया. टुमारो में आपको पता है कि एक ही एम लगता है. पोजेशन में हमें पता है स्टूडेंट्स की पोजेशन की स्पेलिंग डबल एस 2 बार होता है पोजेशन में, तो पोजेशन होता है ये स्पेलिंग. ठीक है, रेफर्ड की स्पेलिंग ये होती है. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू जस्ट हैव टू, आपको सिर्फ मार्क नहीं करने हैं स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे पूरे फिल करने हैं प्रॉपर. जो सही हैं वो यहाँ पे आप फिल करेंगे. मैंने सिर्फ मार्क कर दिया, बट यू हैव टू फिल इट इन दिस. ओके, सो दिस एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड एंड आई विल सेंडिंग यू द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज दैट यू हैव टू फेयर डाउन इन योर कॉपीज. Okay, and just go through the chapter once again students, so that if there is any doubt, because tomorrow हम question answers discuss करेंगे, तो it's better कि आपको chapter पूरा समझ में आ गया हो, उसके बाद ही हम question answers discuss करेंगे. Okay, so thank you class and have a really nice day.